Thank you.
باپ اور بیٹے مائک کھولو، یہ مائک کھولو. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین. سلامتی آپ کے ساتھ ہو. مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج سینٹ میریز پیرش کے لیے برکتوں کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، شکر گزاری کا دن ہے کہ آج ہم اپنے پیرش کی عید منا رہے ہیں. ہمارا پیرش مقدسہ ماں مریم کے نام سے ہے، سینٹ میریز پیرش، اور پاک ماں مریم کی عید 15 اگست کو ہر سال ہوتی ہے. لیکن چونکہ 14 اگست کو پورے ملک میں چھٹی ہوتی ہے، سو ہم ہمیشہ 14 تاریخ کو اپنے پیرش کی عید، پاک ماں مریم کی عید مناتے ہیں. آئیں زوردار تالیوں کے ساتھ آپ سب کو پاک ماں مریم کی عید بہت بہت مبارک ہو. یہ ہمارے لیے اور بھی خوشیوں کا دن ہے کیونکہ آج پہلی بار فرسٹ ٹائم ہمارے پیرش میں فضیلت مواب آرچ بشپ خالد رحمت صاحب ہمارے پیرش میں تشریف لائے ہیں. وہ جب نئے نئے آئے تھے تو ایک دن پاک ماس کر کے گئے تھے، لیکن وہ بہت ہی غیر سرکاری ان کا وزٹ تھا. آج وہ ہمیں برکت دینے آیا، ہمارے پیرش میں پہلی بار آیا. تو میں چاہوں گا جتنی بھی زوردار تالیاں ہو سکتی ہیں، ہم اتنی زوردار تالیوں میں بشپ جی کو ویلکم کہتے ہیں. کچھ لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ بشپ جی اس سے پہلے کوئٹہ میں بشپ صاحب کی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے. خدا نے انہیں آرچ ڈائسس آف لاہور کے لیے چنا اور اب وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں. ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ بشپ صاحب کاپوچن بشپ ہیں اور ہمارے پیرش میں تقریباً 1 سال یہاں انہوں نے بطور اسٹوڈنٹ بھی خدمت کی ہے. یہ ہمارے لیے اور آنر ہے کہ آج آرچ بشپ صاحب ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو پاک استقام کا ساکرامنٹ دے. ایک بار پھر زوردار تالیوں کے ساتھ بشپ جی ویری ویلکم. آج ہمارے بچے جنہوں نے میٹرک پاس کیا، ہم انہیں مبارکباد بھی دیں گے اور دیتے ہیں. آج انہیں دیپ سے دیپ جلاؤ کے تحت اسکالرشپ بھی دیا جائے گا. آئیں آج دعا کرتے ہیں. خدا باپ ہمیں برکت دے. خدا باپ ہمارے آرچ بشپ فضیلت مواب آرچ بشپ خالد رحمت صاحب کو حکمت، دانائی اور کثرت کی برکت دے. ان کا آنا ہمارے درمیان برکتوں کا باعث ہو، آج پاک روح کے سے مسح کیے جانے کا باعث ہو اور ہمارے لیے شکر گزاری کا باعث ہو. ونس اگین بشپ جی آئی ویلکم یو. آپ کی زوردار تعلیم. عمران صاحب آپ کی بات کی قربانی آپ کی سیلیبریشن کے لیے خدا کے حضور گزارتے ہیں. اپنے بابا اعظم کے لیے دعا کریں گے اور ان کے سارے نیک ارادوں کو خدا کے حضور پیش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج جشن آزادی مناتے ہوئے وطن عزیز کی بقا اور سلامتی کے لیے خدا سے دعا کریں گے اور خدا سے فضل بھی مانگیں گے
کہ خدا ہمیں ہمیشہ آزادی جیسی نعمت کی شکر گزاری کرنا سکھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خصوصی طور پہ آپ سب کے خاندانوں کے لیے جو کس کی قربانی دکھانی جائے گی۔ عزیزوں، ہم اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر یہ پاک میں ادا کر سکیں۔ میں قادر مطلوب خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کنواری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلوب خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ دونوں کے تہذیب اپنی خدا تو ہر نسل اور قوم میں اپنی عالمگیر کلیسیا کو مقدس کرتا ہے، دنیا بھر میں ہر جگہ روح القدس کی نعمتیں تقسیم کر تاکہ تیری مہربانی سے ابتدائی بشارت کے ذریعے جو کام ان میں شروع ہوا ہے وہ مومنین کے دلوں میں پھلے، پھولے اور پھیلے،
मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है, परमेश्वर से हमेशा तक जिंदा रहता और संतुलित करता है। आमीन। सब तशरीफ रखें, आज की पहली तिलावत पढ़ी जाएगी। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 2 बाब उसकी 1 ता 12 आयत मुक़द्दसा। जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह में जमा थे और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे तन हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा और आग के शोलों की सी जुबानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और दूसरी जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। और आसमान के तले की हर एक कौम से खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में थे। जब ये आवाज़ सुनाई दी तो हजूम लग गया और लोग मुताजिब हुए, क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। और सब हैरान होकर और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे, देखो ये जो बोलते हैं क्या सब जलीली नहीं? बस क्योंकि हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। पार्थी और मादी और इलियामी और यहूदिया और कपादोकिया और पैंतुस और आसिया और फिरोजिया और पंफोलिया और मिस्र और ल्यूबिया में कीरवान के आस पास के इलाके के बाशिंदे और मुसाफिरीन रोमा, क्या यहूदी, क्या नोमुरीद, क्या कीर्ति और अरबी, हम अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के अजीब कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और ताज्जुब करके एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत है।
पाकलामे से हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम 12 बाब 3 का 7 आयात और फिर 12 से 13 आयात तक। बस मैं जताता हूँ कि जो कोई रूह खुदावंद की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यसू मालूम है, और ना कोई रूह कुदस के बगैर कह सकता है कि यसू खुदावंद है। बस नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है, और तसीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह से असर पैदा करता है। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा अगरचे बहुत से हैं, तो भी हम बाहम मिलकर एक ही बदन हैं। इसी तरह मसीह भी है कि हम क्या यहूदी, क्या गैर कौम, क्या गुलाम, आज़ाद, सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा पाया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के मुताबिक उसका 14वां बाब उसकी 16वीं आयत से, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह अल हक, जिसे दुनिया पा नहीं सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अभी थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखते रहोगे। चूंकि मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं बाप में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। जिसके पास मेरे हुक्म हैं वो उन्हें मानता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उसे प्यार करूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं।
फजीलत मुआब आर्च बिशप खालिद रहमत साहिब, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि कलीसिया के इन बच्चों को पाक इस्तेकाम का साक्रमेंट अता करें। क्या ये बच्चे इस काबिल हैं कि इन्हें इस्तेहकाम का साक्रमेंट दिया जाए? जी हाँ फजीलत मुआब आर्च बिशप साहिब, तमाम बच्चों को इसके बारे में तरबियत दी गई है और इस लायक हैं कि इस्तेकाम का साक्रमेंट हासिल कर सकें। प्यारे बच्चों, मैं खुशी के साथ आपको इस्तेहकाम के साक्रमेंट के लिए कबूल करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ। खुदा मसीह में मेरे चीज़ों, आइए खुदा का शुक्र अदा करें उसकी दी हुई बहुत सारी नेमतों और बरकतों के लिए, और ख़ास तौर पे आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने अपनी मोहब्बत और अपनी प्यासी से हम सबको अता किया है कि आज से मेरीज पैरिश गुलबर्ग में नौजवान और बच्चे इस्तेहकाम का साक्रमेंट हासिल करेंगे। सो खुदा की बहुत बड़ी नेमत, इसके लिए खुदा उनके भरपूर तालियों में शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा उनसे दुआ भी करेंगे कि खुदा हम सबको फजल बख्शे कि हमेशा उन सारी नेमतों और बरकतों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, उनकी कदर करें जो वतन अजीज़ के वसीले से हम सबको खुदावंद ने बख्शी है, और खुदावंद से दुआ करेंगे अपने वतन की सलामती के लिए, इसकी बका और सालमियत के लिए, और सारे अदारों के लिए जो वतन अजीज़ की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। फादर जी ने जिक्र किया 15 अगस्त को आपके चर्च की फीस्ट होती है, तो ये असम्पशन ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मैरी, मुकद्दस मरियम के आसमान पर उठाए जाने की ईद। तो कल ये ईद है, आप मनाएंगे, लेकिन खुसूसी तौर पे फादर जी ने कहा क्योंकि छुट्टी होती है तो आज इस खुशी को मना रहे हैं, तो आपकी भरपूर तालियों में आपके मुकद्दस मरियम की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबका शुक्रिया, आपने बड़े प्यार से, बड़े जोश के साथ, मोहब्बत के साथ मुझे अपने दरमियान खुश आमदीद कहा। आपकी सारी मोहब्बतों के लिए, सारी दुआओं के लिए आपकी भरपूर तालियों में शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ जब भी आता हूँ, और आज फिर दोहराऊंगा, कि मेरी तरबियत में इस पैरिश का एक ख़ास और अहम हिस्सा है। एक तो हमारा मदर हाउस यहाँ पे है, अक्सर हम स्टूडेंट्स भी थे जब, तो अपने कामों के लिए या स्पीकर साहब से मिलने, फादर साहबान से मिलने के लिए आया करते थे। लेकिन ख़ास बात ये कि मुझे थोड़े थोड़े वक्फे के बाद 3 दफ़ा यहाँ पे खिदमत का मौका मिला तालिब इल्म होते हुए। एक बार मैं यहाँ पर पूरे साल के लिए आया कम्युनिटी एक्सपीरियंस के लिए, उस वक्त फादर जी पैरिश प्रीस्ट थे। फिर इन्हीं के पास मेरा 6 माह का पास्टर वर्क भी लगा, कराची से मुझे इन्हीं की ज़ेर निगरानी भेजा गया, और जब तालीम ख़त्म की थियोलॉजी की और डीकन बन के आया तो ऑर्डिनेशन तक भी यहीं पे मुझे फादर जी के साथ खिदमत का मौका मिला। और मैं समझता हूँ, और मैं इस बात को ज़ोर देकर कहता हूँ कि मेरी तरबियत में आपके सारे पैरिश मुबशरान इंजील, आपकी मोहब्बतों का, लेकिन सबसे बढ़ के रेवरेंड फादर मोरिस जलाल का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब इन्होंने हमारी पास्टर लाइफ के लिए तरबियत की, हमें पैरिश के बारे में बताया, खिदमत के बारे में बताया, तो आपकी भरपूर तालियों में आप सबको फादर जी का शुक्रिया अदा करते हैं। आज ख़ास तौर पे खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं पाक रूह की नेमत के लिए। बपतिस्मा के साक्रमेंट में हम सब रूहुल कुद्दस की नेमत पा चुके हैं। जब बपतिस्मा का साक्रमेंट हमें दिया गया तो पानी से हमें मसा किया गया, इसके बाद खास तौर पे बपतिस्मा के तेल से, पानी से बपतिस्मा दे के मैं तुझे बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा देता हूँ, और बपतिस्मा के तेल से हमारी मखसूसियत हुई।
सो बपतिस्मा के सक्रमेंट के जरिए हर एक बपतिस्मा याफ्ता, हर एक मोमन खिदमत के लिए बुलाया गया है और हमारी मखसूसियत हुई है। लेकिन जब कलीसिया इस्तेहकाम का सक्रमेंट देती है तो ख़ास तौर पे जोर दिया जाता है कि क्योंकि अब ये बड़े हो चुके हैं, बच्चे बालिग हो चुके हैं, ख़ानदानी और सोसाइटी की जिम्मेदारियों को समझते हैं, कलीसिया की जिम्मेदारियों को समझते हैं, तो अब ये भरपूरी के साथ अपने ईमान का दफा भी कर सकते हैं, उसका प्रचार भी कर सकते हैं और उसके मुताबिक ज़िंदगी भी गुजारते हैं। तो पहली बात, बपतिस्मा के सैक्रामेंट के सारे खुदावंद के लिए मखसूस हुए, लेकिन आज ख़ास तौर पे इन्हें पाकरिज़मा के तेल से मसा किया जाएगा और कलीसिया तवक्को करती है कि अब ये जवान हैं, बड़े हो चुके हैं, भले बुरे में तमीज़ कर सकते हैं। इस वजह से इनकी ज़िंदगी और मौजूदगी और खिदमत के वसीले से खुदा के नाम को जलाल मिलेगा और कलीसिया मजबूत होगी। बपतिस्मा का सैक्रामेंट, इस्तेहकाम का सैक्रामेंट और पाकशाकर, ये तीनों सैक्रामेंट्स कहलाते हैं द सैक्रामेंट्स ऑफ इनिशिएशन, आगाज के सैक्रामेंट, इब्तिदा के सैक्रामेंट। जिंदगी की आगाज होता है और पापा आज़म पॉल शिशम जिन्होंने इस्तेहकाम के सैक्रामेंट का ये डॉक्यूमेंट जारी किया 1971 में अपने फरमान में लिखते हैं, और एग्जैक्ट ईद यही थी जो कल आप मनाएंगे। पापा आज़म फरमाते हैं कि बपतिस्मा के सैक्रामेंट के जरिए हम सब खुदावंद के लिए मखसूस किए गए हैं, और इसके साथ साथ इस्तेहकाम के सैक्रामेंट में हमें ख़ास तौर पे पाक रूह दिया जाता है ताकि हम दिलेरी के साथ खुदा के नाम को जलाल दे सकें, अपनी खिदमत और जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पापा आज़म फरमाते हैं यसु मसीह के वसीले से इंसानों की इलाही ज़ात में शराकत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फितरी ज़िंदगी का आगाज़। फितरी ज़िंदगी का आगाज़ हमारी पैदाइश से हुआ, लेकिन बपतिस्मा के सैक्रामेंट के जरिए से हमारी रूहानी ज़िंदगी का एक आगाज़ और ईमानी ज़िंदगी का आगाज़। बपतिस्मा के जरिए ईमानदार असरे नौ पैदा होते हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, और हमारा ईमान है कि बपतिस्मा के सैक्रामेंट में हम मोरूसी गुनाह से पाक साफ किए जाते हैं। जब सर पे पानी डाला जाता है, बपतिस्मा के तेल से मसा किया जाता है, तो हमारा ईमान है कि हम मोरूसी गुनाह से पाक साफ किए गए हैं। इस्तेहकाम के सैक्रामेंट से मजबूती पाते हैं और बिलाखिर यूखरिस्ट के जरिए हमेशा की ज़िंदगी की खुराक से सैर किए जाते हैं। तो सैक्रामेंट्स ऑफ इनिशिएशन तीनों की बात की गई है। बपतिस्मा के सैक्रामेंट में हम असर नौ पैदा होते हैं, रूहानी तौर पर पैदा होते हैं। इस्तेहकाम के सैक्रामेंट में मजबूती पाते हैं और पाक यूखरिस्ट के सैक्रामेंट के हमेशा की ज़िंदगी की खुराक से सैर किए जाते हैं। पापा फरमाते हैं ये दुरुस्त तौर पर लिखा गया है कि बदन को इसलिए गुस्ल दिया जाता है ताकि रूह धुल सके, बदन को मसा किया जाता है ताकि रूह की तकदीस हो सके, बदन इसलिए बमोहर किया जाता है कि रूह का मस्कन बन जाए। आज जब विश्व साहब इस्तेहकाम का सैक्रामेंट देंगे तो एग्जैक्ट कुलिया, एग्जैक्ट फार्मूला जो पाक कलीसिया ने दिया है, बी सील्ड विद द सील ऑफ द होली स्पिरिट, रूहुल कुदस की नेमत से बमोहर हो। और पापा आज़म वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि इस्तेहकाम का सैक्रामेंट इस तरह दिया जाए, ये हाथों के धरने से दिया जाए, ये पाकरिज़मा के तेल से मसा के जरिए दिया जाए, और इस कुलिये के साथ दिया जाए बी सील्ड विद द सील ऑफ द होली स्पिरिट, यानी रूहुल कुदस की मोहर से बमोहर हो। एग्जैक्ट पाकमा कलीसिया ऐसे ही बपतिस्मा देती है जैसे कलीसिया बपतिस्मा, इस्तेहकाम और दीगर सैक्रामेंट जैसे खुदा ने हमें दिए हैं और कलीसिया ने फरमान जारी किया है। तो आज जब इन नौजवानों को इस्तेहकाम का सैक्रामेंट दिया जाएगा, इन पर रूहुल कुदस की मोहर कर दी जाएगी, खुदावंद की मोहर कर दी जाएगी। और मैं जोर देकर कहता हूं, हमेशा कहता हूं
ہم خداوند کے ہو گئے ہیں، کسی اور پر ہمارا حق نہیں ہے، صرف خداوند ہمارا مالک ہے۔ مسیحی ایمان میں ہم خداوند کے لیے بلائے گئے ہیں، اس لیے ساری وفاداری، ساری پرستش، ساری ستائش یہ صرف خداوند کے لیے اور پاک ماں کلیسیا کے لیے۔ میں نے زور دے کر کہا کہ یہ نوجوان ابھی بڑے ہو چکے ہیں، اور گرو ہوں گے، اور تربیت ہوگی، والدین ان کی پرورش و پالنا کریں گے اداروں میں، اور کلیسیا ان کی پرورش و پالنا کرے گی، لیکن ہم اب توقع کرتے ہیں کہ یہ کیتھولک مسیحی ایمان کی گواہی دیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس کا دفاع بھی کریں گے۔ تو استحکام کے ساکرامنٹ میں ہمارا ایمان ہے کہ پاک روح کا فضل بھرپوری کے ساتھ ہمیں ملتا ہے، تاکہ ہم مشکلات اور چیلنجز اور دکھوں اور مصیبتوں کا سامنا کر کے اپنے سچے ایمان کی گواہی دے سکیں۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا، آپ پر روح القدس کی مہر کر دی جائے گی۔ جب میرے آفس سے کوئی ڈاکیومنٹ جاری ہوتا ہے، میرے سائن ہوتے ہیں، میری مہر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، آئی اون دیٹ۔ سو خداوند آپ کا مالک ہے، پاک ماں کلیسیا کے ہو آپ۔ اس وجہ سے دکھوں اور مصیبتوں اور مشکلات اور چیلنجز کا سامنا دلیری کے ساتھ کرنا ہے۔ نوجوانوں، ابتدائی کلیسیا کو بھی بہت زیادہ مشکلات اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی 3 صدیاں، پہلی 3 صدیاں یہ اذیتوں اور دکھوں اور مصیبتوں کی صدیاں تھیں۔ مسیحی مشکلات میں زندگی گزارتے تھے، اذیت اٹھاتے تھے، انہیں شیروں کے آگے پھینک دیا جاتا تھا، مصلوب کیے جاتے تھے، قید میں ڈالے جاتے تھے، لیکن کبھی بھی اپنے ایمان پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ خوشی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اپنے ایمان کی اور یسوع کی گواہی دیتے رہے۔ ہم سب سے، اور خاص طور پہ نوجوانوں آپ سے، کلیسیا اب توقع کرتی ہے کہ آپ اچھی زندگی گزاریں، وفاداری کی زندگی گزاریں، کلیسیا کے تابع ہو کر زندگی گزاریں، اور کسی کے لیے، خاندانوں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، مختلف اداروں میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو مختلف حالات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو ورغلایا جاتا ہے، لیکن کلیسیا توقع کرتی ہے کہ آپ مضبوط ہو چکے ہو، آپ بڑے ہو، آپ کے والدین نے پرورش کی ہے، کلیسیا نے آپ کی پرورش و پالنا کی ہے، دعا کے ذریعے سے، پاک کلام کے ذریعے سے، ساکرامنٹوں کے ذریعے سے۔ اس وجہ سے وفاداری خداوند سے، اپنے ایمان سے، اپنے خاندان سے۔ عزیز نوجوانوں، میں نے کہا باہر نکلتے ہیں تو ورغلائے بھی جاتے ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، دکھ تکلیفیں بھی آتی ہیں، لیکن اب کلیسیا یہ توقع کرتی ہے کہ آپ روح القدس کا مسا پا کر استحکام کے ساکرامنٹ سے مضبوطی حاصل کر کے دلیری کے ساتھ اپنے ایمان کی گواہی دیں گے، اور اپنے فرائض اور ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کریں گے۔ آپ کے والدین آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس سارے پروسیس میں آپ کی تربیت کی گئی ہے، آپ کے اساتذہ نے، فادر جی نے، مشران انجیل نے۔ آپ کا بھی فرض ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کریں۔ سب سے پہلا کام کلیسیا سے وفاداری، اپنے ایمان سے وفاداری۔ دوسرا، اپنے خاندان سے وفاداری۔ ہمیشہ اپنے والدین کی قربانیوں کو یاد رکھا کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ کے والدین نے آپ کے لیے خواب دیکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے تابع رہیں، ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں، ان کی سنیں۔ نوجوانوں کے پاس انرجی اور جوش اور جذبہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن حکمت، وزڈم اور ایکسپیرینس، زندگی کا تجربہ، یہ آپ کے ماں باپ کے پاس ہے، آپ کے بڑوں کے پاس ہے۔ سو ہمیشہ انہیں سنا کریں، اپنے والدین کے تابع رہیں، انہوں نے آپ کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ عزیز نوجوانوں، آپ پر کلیسیا کا حق ہے، آپ کے خاندان کا حق ہے، اور روح القدس کا بسا آپ کو دیا جاتا ہے تاکہ آپ مضبوط ہو جائیں۔ ہم سب جانتے ہیں خاندانی زندگی کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہمیشہ رشتوں کو مقدم رکھے، رشتوں کا احترام کرے۔ ماں باپ، بہن بھائی، خاندان یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک دوسرے سے جڑے رہنے کی کوشش کریں،
خاندان متحد ہوں گے تو کلیسیا متحد ہوگی اور پھر اچھے طریقے سے خداوند کی گواہی بھی دے سکیں گے۔ آج ہم نے رسولوں کے اعمال کی کتاب سے تلاوت سنی ہے، روح القدس کے نزول کا واقعہ۔ شاگرد سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، اسی بالا خانے میں بند تھے جہاں پہ انہوں نے آخری کھانا کھایا تھا خداوند کے ساتھ، لیکن جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو دلیری کے ساتھ خدا کے نام کی ستائش کرنے لگے، اس کی گواہی دینے لگے اور مسیحی ایمان کی بھرپور طریقے سے گواہی دی۔ پھر وہ رکے نہیں، پھر ان کی خدمت، ان کا مشن، ان کی منادی، ان کی بشارت کا سفر شروع ہوا اور پوری دنیا تک پھیل گیا۔ آج خدا کو خادموں کی ضرورت ہے، کلیسیا کو خادموں کی ضرورت ہے۔ بہت سارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں، کاہنانہ خدمت کے لیے، راہبانہ اور بشرا انجیل کی، لیکن خاندانی زندگی میں بھی ہم رہ کر اچھے طریقے سے، مؤثر طریقے سے خداوند کی گواہی دے سکتے ہیں۔ عزیزوں، خدا کا شکر ادا کریں کہ خداوند پاک کلیسیا ساکرامنٹوں کے ذریعے سے ہماری تربیت کرتی ہے، ہمیں خدا کا فضل ملتا ہے تاکہ ہم دلیری کے ساتھ خداوند کی گواہی بھی دے اور اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو بھی اچھے طریقے سے پورا کر سکے، کیونکہ خداوند نے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا جو ساری سچائی کے لیے تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت سے پڑھتے ہیں، اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ ہمارا مشن خداوند کے نام کا پرچار کرنا، خداوند کی تمجید کرنا اور کلیسیا کی خدمتوں کو پورا کرنا، لیکن میں نے کہا سب سے بڑھ کے اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو پورا کرنا اور اپنے خاندان میں اتحاد قائم رکھنا۔ ہم مختلف نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں۔ مقدس پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کا نام خط، پہلے خط میں اس کے 12ویں باب میں فرماتے ہیں، پس نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، مگر خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح سے اثر پیدا کرتا ہے۔ سو ہم سب کو مختلف خدمت بخشی گئی ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہے مگر روح ایک ہی ہے۔ خاندانی زندگی کی نعمت اور برکت بخشی گئی ہے، کہنانہ خدمت کی نعمت اور برکت بخشی گئی ہے۔ کچھ اچھے منتظم ہوتے ہیں، کچھ اچھے استاد ہوتے ہیں، کوائر اپنی خدمت کر رہی ہے، آلٹر بوائز، ٹیچر، سب سو خدا نے ہمیں روح کی مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ ضرور یہ ہے کہ سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کریں اور پھر ان نعمتوں اور برکتوں کو خدا کے نام کے جلال کے لیے، خاندانوں کی بہتری کے لیے اور کلیسیا کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال بھی کریں۔ خدا نے فیاضی سے ہمیں یہ نعمتیں بخشی ہیں، ہم بھی فیاضی کے ساتھ اور دلی شوق اور جذبے کے ساتھ انہیں کلیسیا کی تعمیر و ترقی کے لیے، خاندانوں کے لیے اور سوسائٹی میں بہتری لانے کے لیے استعمال کریں۔ ساری خدمتیں ہی پاک ہیں، خاندانی زندگی کی برکت بھی اور مخصوصیت کی زندگی کی برکت بھی مقدس اور پاک ہے۔ سو خدا کا شکر ادا کریں گے، خدا نے آپ سب کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ استاد ہیں تو اپنی وفاداری کو، اپنی ذمہ داری کو وفاداری سے پورا کرنا، خادم ہیں تو ذمہ داری سے خدمت کرنا، خدا کے خوف سے خدمت کرنا، اور خاندانی زندگی کی برکت میں ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری بخشی گئی ہے۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے۔ خدا نے آپ کو والدین ہونے کی ذمہ داری، برکت اور فضل بخشا ہے۔ آپ اچھے والد بنے، اچھی ماں ہوتے ہوئے اپنے خاندان کو متحد رکھیں، بچوں کی ایمان میں پرورش کریں، ان کی تربیت کریں تاکہ یہ ذمہ دار انسان بن سکے، ذمہ دار مسیحی اور شہری بھی بن سکے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، روح سے کسی کو حکمت کا کلام ملتا ہے، کسی کو اسی روح سے علم کا، کسی کو اسی روح سے ایمان، اور کسی کو اسی ایک روح سے نعمت اشفاء، معجزوں کی قدرت، نبوت، امتیازی ارواح، زبانوں کی کثرت۔
खुदा ने बेशुमार सलाहियतों से हमें नवाजा है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खामोशी, हलीमी और ताबेदारी के साथ हम कलीसिया के लिए और ख़ानदानों के लिए बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी से और इस पैरिश की एक्टिविटीज़ के ज़रिए से, जिम्मेदारियाँ निभाने के ज़रिए से हम इसका बड़े अच्छे तरीके से जायज़ा भी ले सकते हैं, देख भी सकते हैं, एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। पौलुस फरमाते हैं, बस तुम फर्दन फर्दन होकर मसीह का बदन हो। यू आर द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया मसीह का इसरारी बदन है और हम उस बदन के अज़ा हैं। बस वाजिब है कि हर कोई अपनी अपनी खिदमत जिम्मेदारी से पूरा करे। इस काम के साक्रामेंट में जब रूहुल कुदस की भरपूरी आपको अता की जाएगी तो आपको रूहुल कुदस के फल मिलेंगे। मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी और नेकी, ईमानदारी, हलीमी और परहेजगारी। खुदा चाहता है कि हम ईमान में ज़िंदगी गुजारें, हमारी अच्छी मिसाल और नमूना हो। लोग देखें तो कहें कि ये खुदावंद के पैरोकार हैं, ये मसीही हैं, ये सच बोलते हैं, ये ज़िम्मेदाराना ज़िंदगी गुजारते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, वक्त की कदर करते हैं, खुदा की नेमतों के लिए हमेशा शुक्रगुजारी करते हैं। हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी को, कलीसियाई ज़िंदगी को इन फलों की, इन नेमतों की ज़रूरत है। मोहब्बत के साथ खिदमत करें। जो भी काम और जिम्मेदारी आप सबको दी जाए, मुझे दी जाए, उसे खुशी के साथ अंजाम, मजबूरी समझ के नहीं, बर्डन समझ के नहीं, खुशी के साथ। कि जो कुछ करते हैं खुदावंद के लिए करते हैं, किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं। फिर हमेशा दुखों और मुसीबतों में सब्र से ज़िंदगी गुजारना, एक दूसरे पर मेहरबान होना, क्योंकि खुदा हम पर मेहरबान है। ईमानदारी में ज़िंदगी गुजारना, मगरूरी नहीं, तकब्बर नहीं कि हम दूसरों से बेहतर है, बल्कि हलीमी और फरोख्ती के साथ जो भी खुदा ने हमें दिया है उसे खुदा की कलीसिया की तामीर और तरक्की के लिए और निजात के लिए लोगों तक पहुँचाएँ। पौलुस रसूल फरमाते हैं, करंथियों की कलीसिया का नाम दूसरा खाब, उसका दूसरा बाब, खुदा का शुक्र हो जो मसीह में हमारे ज़रिए से अपनी मार्फत की खुशबू हर जगह फैलाता है। हम सब खुदा के जोर शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी के वसीले से, हमारी खिदमत और मौजूदगी के ज़रिए से खुदा की मार्फत की खुशबू लोगों तक पहुँचती है। लोग हमारे कैरेक्टर से, हमारी मौजूदगी से जाने कि ये खुदा उनके पैरोकार है, ये मसीही। खुदा का शुक्र हो जो मसीह में हमारे ज़रिए से अपनी मार्फत की खुशबू दूसरों तक पहुँचाता है। तो हमने अपने किरदार से, अपने माल से, अपनी मौजूदगी से खुदावंद की मौजूदगी, उसकी खिदमत, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें लोगों तक पहुँचानी है, ताकि लोग जाने कि ये खुदावंद के पैरोकार हैं। क्योंकि हम खुदा के आगे उनके लिए जो बचाए जाते हैं और उनके लिए भी जो हलाक होते हैं मसीह की खुशबू हैं। सो हमारी मौजूदगी से लोगों को अच्छा लगे। जब वो तुम्हारी तारीफ करेंगे तो दर हकीकत तुम्हारे आसमानी बाप की तारीफ होगी। मत्ती के मुताबिक इंजील 5वां बाब, तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा हो वो छुप नहीं सकता, और लोग चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं ताकि उसकी रोशनी सब लोगों तक पहुंचे। खुदा का शुक्र अदा करेंगे रूह कुदस की हिम्मत और बरकत के लिए जो इस्तेकाम के साक्रामेंट में, बपतिस्मा के साक्रामेंट में हमें मिली है। और हमारी खिदमत ये है कि दुनिया का नूर खुदा यीशु मसीह वो दूसरों तक पहुंचे। और तुम जमीन का नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। मसीही ज़िंदगी से यीशु का नूर लोगों तक पहुँचे, खुदावंद की खुशबू लोगों तक पहुँचे, और हमारे ज़रिए से कलीसिया का अमन, ईमान, फलाह व बहबूद, नेकी
یہ اثر بھی لوگوں تک پہنچے۔ تم دنیا کا، تم زمین کا نمک ہو۔ نمک ہمیشہ ٹیسٹ ہوتا ہے، کھانے کو خوش ذائقہ بناتا ہے۔ ہماری زندگی سے بھی لوگوں کو خوشی ملے، فرحت ملے، لوگ ہمیں دیکھ کے ہمارے آسمانی باپ کی تمجید کریں۔ میرے عزیزو، خدا کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں آج کا یہ خوبصورت دن بخشا۔ ان نوجوانوں کے لیے بھی دعا کریں گے جنہیں استحکام کا سیکرمنٹ دیا جا رہا ہے۔ ان کے اساتذہ کے لیے دعا کرتے ہیں، والدین کے لیے، فادر جی کے لیے، اور ان کی ساری آپ کی ساری پاس والی ٹیم کے لیے۔ میری دعا ہے کہ جب بچے استحکام کا سیکرمنٹ حاصل کریں، ہمیشہ خدا ان کی شکر گزاری میں بڑھے، کلیسیا کی وفاداری میں بڑھے، اور خاندانوں کی فلاح و بہبود میں آگے بڑھے۔ پولس فرماتے ہیں، میں مسیح کے ساتھ مصروف ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ خداوند ہمارے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے۔ جو بھی خدمت اور ذمہ داری آپ سب سے بخشی گئی ہے، خاندانی طور پہ، کلیسیائی طور پہ، اسے وفاداری کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اور خداوند کے نام کے جلال کے لیے ہمیشہ بجا لانا۔ جو کچھ کرو وہ دل سے ایسے کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ سو ہماری خدمت دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ خدا کے نام کو چاہتے ہیں۔ ایک بار پھر زور دے کر کہنا چاہتا ہوں، اپنی خاندانی زندگی کی طرف توجہ دیں۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے۔ بچوں کے اتنے سارے فرائض پورا کرتے ہیں، ان پر نظر بھی رکھتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ آپ کا فرض ہے، تاکہ خاندانی زندگی مضبوط بھی ہو، متحد بھی ہو، اور خدا ان کے نام کے جلال کے لیے گرو بھی ہو سکے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمارے اس پیرش کو، اس کلیسیا کو ڈھیروں خوشی اور برکتوں سے نوازے۔ آج جب نوجوانوں کو استحکام کا سیکرمنٹ دیا جائے گا تو یہ ہمارے سارے پیرش کے لیے، ہماری خاندانی زندگی کے لیے روح میں نئے پن اور تجدید کا وسیلہ بنے۔ خدا ہم سب کو بہت زیادہ برکات ہو، خدا سے دعا سے۔ امیدوار کھڑے ہو جائیں گے جن کو آج استحکام کا سیکرمنٹ دیا جائے گا، جن کو استحکام کا سیکرمنٹ دیا جائے گا۔ آپ سب کا مومن کا آپ سب کا جواب ہوگا، جی ہاں ہم ترک کرتے ہیں۔ ابھی بپتسمہ کے وعدوں کی تجدید کی جائے گی، ہم سب مل کر اپنے بپتسمہ کے وعدوں کی تجدید کریں گے، لیکن خاص طور پہ ہمارے نوجوان جو استحکام کا سیکرمنٹ حاصل کرنے کو ہیں۔ آپ کا جواب ہوگا، جی ہاں ہم ترک کرتے ہیں۔ کیا آپ شیطان اور اس کے سب کاموں اور اس کے سب کھوکھلے وعدوں کو ترک کرتے ہیں؟ کیا آپ خدا کا مطلق بات پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، جو کنواری مریم سے پیدا ہوا، مصلوب کیا گیا، مر گیا اور دفن کیا گیا، مردوں میں سے جی اٹھا اور اب باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ روح القدس پر جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، جو پینتیکوس کے روز رسولوں پر نازل ہوا اور جو آج آپ کو استحکام کے سیکرمنٹ میں دیا جائے گا، ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ پاک کلیسیا، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جھوٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہمارا ایمان یہی ہے، یہی کلیسیا کا ایمان ہے۔ ہم فخر کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح میں اسی ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، بپتسمہ کے وسیلے سے ہمارے خدا باپ نے اپنے ان چنے ہوئے فرزندوں کو اپنی زندگی میں اثر نو پیدا کیا ہے۔ آئیں
हम अपने आसमानी बाप से दुआ मांगे कि इन पर अपना रूह कुदस नाज़िल फरमाकर अपने इन फर्जंदों को रूह कुदस की नेमतों से मुस्तहकम करे और इन्हें वसा करते हुए खुदा के बेटे मसीह खुदावंद का हम शक्ल बनाए। फादर जी भी अपने हाथ पसारेंगे। एकाग्र खुदा, हमारे खुदा यीशु मसीह के बाद तूने पानी और रूह कुदस के वसीले से अपने इन फर्जंदों को गुनाह की गुलामी से आज़ाद करके नई जिंदगी अता की है। इन पर अपना रूह कुदस नाज़िल फरमा जो इनका मददगार और रहनुमा हो। इन्हें हिकमत, फहम, मशरत, मजबूती, इल्म और दीनदारी की रूह अता फरमा। इन्हें अपनी हजूरी में हैरत और खौफ खुदा की रूह से मामूर कर दे। हम ये दुआ मानते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। सभी तशरीफ रखें। अभी जितने भी उम्मीदवार बच्चे हैं उन सबको इस काम का साक्रामेंट दिया जाएगा। खिदमत की देर से मसा किया जाएगा और उसी के दौरान क्वायर जो है गीत गाएगी लेकिन मध्यम आवाज़ में, ताकि नाम लेकर बच्चे को जो है वो साक्रामेंट दिया जाएगा, ताकि नाम जो है वो पढ़ा भी जाए और सुना भी जाए।
तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कोई भी मोबाइल कैमरा लेके आगे नहीं आए। कैथलिक टीवी कवरेज कर रहा है, तस्वीरें भी खींच रहा है। आप कैथलिक टीवी से जो है वो तस्वीरें ले सकते हैं। तो बराए मेहरबानी रास्ता छोड़ दे, कोई भी आगे नहीं आए।
खड़े होंगे, अपनी दुआएं अर्ज़ मिलकर शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुज़ूर पेश करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, हम आजिज़ी के साथ कादिर मुतलक खुदा बाप के हुज़ूर में इस ईमान, उम्मीद और मोहब्बत के साथ दुआ मांगे जो रूह कुदस की बदौलत हमें नसीब हुई है। कि खुदावंद हमारे रूहानी चौपानी पपाए आज़म लियो चौधरी को हमेशा सेहत तंदुरुस्ती में बहाल रखे, ताकि वो खुदा की मोहब्बत को दुनिया में फैलाते हुए अपना अहम किरदार अदा करते रहें। अजीज़ों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें कि खुदा बाप हमारे फजीलत माप आर्च बिशप हालत रहमत को अच्छी सेहत और उम्र की दराजी अता फरमाए, ताकि ये इसी तरह ईमानी तकाज़ों के मुताबिक कलीसिया की आप यारी करते रहें। अजीज़ों दुआ करें। अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर मोरिस जलाल OFM कैप के लिए और तमाम काहिनाना बरादरी, सिस्टर सहबात और मुबशरान अंजील को ईमान में सरगर्म रखे, ताकि पाक अंजील को फैलाने में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए कि खुदा उसे अपनी पनाह और हिफाजत में रखे, इसके इदारों और अहदेदारान को हिकमत अता करे, ताकि मुल्क पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकें। अजीज़ों दुआ करें। आज इस्तेकाम का पाक साक्रामेंट हासिल करने वाले तमाम बेटे और बेटियों के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद खुदा इन्हें ईमान में मजबूत रखे, ताकि ये पाक रूह कुदस की मदद से अच्छी और ईमान की ज़िंदगी बसर करें। अजीज़ों दुआ करें। मैट्रिक के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले तालिबीन को इसी तरह ज़िंदगी में कामयाबी अता करे, और जो बच्चे किसी भी कमज़ोरी की वजह से कामयाब नहीं हो सके, खुदावंद उन्हें दिलेरी, हिम्मत, ताकत और हिकमत अता करे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। कुल कायनात को खाली करने वाला और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने वाला जिंदा खुदा तमाम बे औलादों को औलाद अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। कि शिफा बख्शने वाला खुदा तमाम बीमारों को जो हस्पतालों, घरों, रिश्तों या हमारे तल्लुकात में है, उन्हें हर बीमारी और लाचारी से सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करते हैं सेंट मेरी पैरिश के तमाम ख़ानदानों घरानों के लिए कि मुक़द्दस माँ की शफ़ाअत से हमेशा इन ख़ानदानों घरानों पर खुदा का फजल और रहम हमेशा नाज़िल होता रहे, ताकि हमेशा मुक़द्दस मरियम की अक़ीदत और मोहब्बत में आगे बढ़ते जाएं। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम आज ख़ास कर वतन अजीज़ के लिए दुआ करते हैं। खुदा यहाँ अमन और सलामती कायम करे, ताकि यहाँ बसने वाला हर इंसान, हर शहरी खुदा की रहमतों और बरकतों में अमन और सलामती से रहे। अजीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा बाप, तूने अपने रसूलों को रूहुल कुदस बख्शा और तू चाहता है कि उनकी और उनके जानशीनों की मार्फत ये तेरे तमाम लोगों को मिले। बख्श दे कि रूहुल कुदस के नज़ूल का वो काम जो पेंतीकोस्त के रोज़ शुरू हुआ था, तमाम ईमानदारों के दिलों में बढ़ता और तरक्की करता रहे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। सब तशरीफ़ रखें। अभी क्वायर के साथ मिलकर हम गीत में शामिल होंगे और हम अपनी शुक्रगुजारियों की नजराने खुदा की नज़र करेंगे।
असीस दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारी नहीं बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए, आमीन। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, रूहुल कुदस की आग ने तेरे बेटे के शागिर्दों को जोश से भर दिया था। बख्श दे कि इससे ये नजराने भी पाक और मुकद्दस बने जो हम तेरे हुजूर पेश करते हैं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बात कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। हर ज़माने की ज़रूरतों के मुताबिक तो मुनासिब इंतज़ाम करके हैरान कुन तरीके से अपनी कलीसिया की हदायत करता है। तो रूहुल कुदस की कुदरत से
अपनी उम्मत की लगातार मदद करता है ताकि वो हमेशा प्यार से तेरी खिदमत करे, मुसीबत के वक्त तुझसे इल्तमास करे और खुशी के वक्त वाजिब शुक्र बजा लाए। इसी हमारे खुदावंद के वसीले से जिसे दोनों जहान मुबारक कहते हैं और जिसकी अजमत फरिश्ते और मुकर्रब फरिश्ते लगातार ये कहते हुए बयान करते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंदों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह से खाने के बाद मैद का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस ए बात, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप लियो, हमारे आर्च बिशप खालिद रहमत और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूम ईमानदारों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ तुम्हारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यसू मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को, रूहुल कुदस की वहदानियत को कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदबू से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श।
ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती रहात बख्श तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। एक दूसरे की सलामती चाहिए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मिलाया जाना पाक शर्त लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। मेरे चीज़ों ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, और मुबारक है वो सब जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। आमीन। सभी तशरीफ रखें। इसी खुदावंद मेरे अजीज़ों, अभी पाकशाकत का वक्त है। आज जो इस्तेकाम के बच्चे हैं सबसे पहले वो पाकशाकत लेंगे, तो सभी से गुजारिश है कि जल्दी से किताब पढ़ें।
खुदावंद हमारे खुदा अता फरमा कि हम तेरी नेमतें पाकर उनसे फ़ायदा भी उठाएं और हमेशा तेरी इस रूह की तासीर से जो शिले रहे, जो तूने हैरान कन तरीके से अपने रसूलों पर नाज़िल फरमाई, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। बरकत के साथ खड़े होंगे। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी हिफाजत करे। आमीन। खुदावंद आप पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और आप पर रहम फरमाए। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आप पर मुतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे। आमीन। और कादर मतलब खुदाबा और बेटे और रूह कुद्दस की बरकत आप सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। सभी तशरीफ रखें। जिस तरह कि आप सभी जानते हैं कि आज की इबादत के 2 हिस्से थे। पहले हिस्से में बच्चों को पाक इस्तेकाम का साक्रामेंट दिया गया। दूसरा हिस्सा जो है जिसमें हम मैट्रिक पास बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। तो अभी मैं चाहूँगा क्वायर को कि एक नगमा गाया जाए।